নমস্কাৰ গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰলৈ স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি জিএমচিএইচত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ সুপাৰ স্পেশালিটি হাস্পতাল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ আছে 300 বিছনাযুক্ত এচিএন চেণ্টাৰত 4টা বিভাগ আছে অত্যাধুনিক যন্ত্ৰপাতি সা-সঁজুলিৰে সজ্জিত চিকিৎসালয়খনত উপলব্ধ হ'ব উন্নত মানৰ চিকিৎসা সেৱা আৰু আজি মুকলি হোৱাৰ পিছতে কাইলৈৰ পৰাই এই উন্নত মানৰ চিকিৎসা আৰম্ভ হ'ব ভঙাগড়ৰ পৰাই মুকলি নেশ্যনেল ফৰেনচিক সায়েন্স ইউনিভাৰ্চিটি আমি পুনপটীয়া দৃশ্য দেখুৱাই যাম আমি 300খন বিছনাযুক্ত চিকিৎসালয়লৈ আপগ্ৰেড কৰো আৰু এই গুটেই অনুষ্ঠানটোৰ কলেবৰ বৃদ্ধি কৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ পুঁজিৰ পৰা 273 কোটি টকা ব্যয় কৰি আজি আমি এই হস্পিটালখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছো আৰু এই চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসা সেৱা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ নিউৰলজি আৰু কাৰ্ডিঅলজি বা নিউৰো সাৰ্জাৰী আদিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাত আমাৰ যি অসুবিধা হৈ আছিল সেই অসুবিধা বহু পৰিমাণে দূৰ হ'ব গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ লগত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিচাপে মই 2006 চনৰ পৰাই জড়িত হৈ আছো আৰু আমি এটা কথা দেখিবলৈ পাইছিলো যে আটাইতকৈ আমি যত অসুবিধা পাও সেয়া হৈছে সুপাৰ স্পেশালিটি বিভাগসমূহত কাৰণ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তাক এখন পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইনষ্টিটিউট হিচাপে তাৰ কল্পনা কৰা হৈছিল ডিএম এমচিএইচ আদি কোৰ্সৰ কথা সেই সময়ত চিন্তা কৰা হোৱা নাছিল গতিকে মেডিচিন ডিপাৰ্টমেণ্টৰে অলপ জায়গা আঁতৰাই সাৰ্জাৰীৰ অলপ জায়গা আঁতৰাই কৰবাত 8খন কৰবাত 20খন বিছনাৰে আমি সুপাৰ স্পেশালিটি আৰম্ভ কৰিছিলো আমাৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা যে 2014 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়ত দুখনকৈ সুপাৰ স্পেশালিটি হস্পিটাল অনুমোদন কৰিছিল ইতিমধ্যে সেই দুইখন সুপাৰ স্পেশালিটি হস্পিটাল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু ডিব্ৰুগড়ত আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিছো আৰু সুপাৰ স্পেশালিটিকে আৰু বেছি বিখণ্ডিত কৰি আমি অকল কাৰ্ডিঅলজি আৰু নিউৰলজিৰ বাবে আজি এই আটক ধুনীয়া চেণ্টাৰটো আমি নিৰ্মাণ কৰিছো অনাগত দিনত আমাৰ প্ৰচেষ্টা আছে যে প্ৰায় 300 কোটি টকা খৰচ কৰি ইতিমধ্যে আমি এমচিএইচৰ নতুন বিল্ডিং এটা 8 খলপীয়া নতুন বিল্ডিং এটাৰ কাম আমি ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছো আৰু এই 8 ষ্টৰীজ এমচিএইচ বিল্ডিং হৈ যোৱাৰ লগে লগে আৰু সুপাৰ স্পেশালিটি বিল্ডিংখিনি এই ফাললৈকে অৰ্থাৎ ৰাইট হ্যান্ড সাইড অফ জিএমচিএইচত আহি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ জিএমচিএইচৰ মেইন বিল্ডিংৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ বহু গুণে কমি যাব সমান্তৰালভাৱে ইউৰলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে আমি আৰু এটা ইউৰলজি আৰু নেফ্ৰলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে আৰু এটা সুপাৰ স্পেশালিটি ব্লক এই অঞ্চলতে আমি বনাবৰ কাৰণে ঠিক কৰিছো অৰ্থাৎ আমাৰ আজিৰ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা মতে হিমাটলজি বা আন ডিপাৰ্টমেণ্টক লৈ সুপাৰ স্পেশালিটি ব্লক 1 কাৰ্ডিঅলজি নিউৰলজিক লৈ সুপাৰ স্পেশালিটি ব্লক 2 আৰু ইউৰলজি নেফ্ৰলজি লৈ আমি সুপাৰ স্পেশালিটি ব্লক 3 আমি এই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তে দেখা পাম এই সংযোজনৰ লগত সমান্তৰালভাৱে আমাৰ চৰকাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বৰ্তমান পুৰণা যিটো আমাৰ পাৰ্ট আছে সেই পুৰণা পাৰ্টটোক এটা 10 বছৰীয়া পৰিকল্পনা হাতত লৈ এটাকৈ তাক ভাঙি পেলাই আমি এটা সুন্দৰ নতুন হস্পিটাল এখন নিৰ্মাণ কৰিব ওলাইছো য'ত 3000 লোকক আমি একেলগে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব পাৰিম আজি যি আমি হেফেজাৰ্ডলি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মেইন কেম্পাছটো আমি বনাইছো তাৰ স্থানত আমি এটা সুউচ্চ অট্টালিকাৰে আমি নতুন এখন চিকিৎসালয় নিৰ্মাণৰ আমি পৰিকল্পনা আগুৱাই লৈ গৈছো
আৰু তাৰ কাৰণে আমি হস্পিটালখনৰ ৰাইট হেণ্ড সাইডত এই চিকিৎসালয়বিলাক নিৰ্মাণ কৰিছো যাতে বাওঁফালে যেতিয়া আমি মেইন হস্পিটালখন নিৰ্মাণ কৰিব খুজিম তেতিয়া যাতে আমাৰ ৰোগীসকলৰ কোনো অসুবিধা নহয়। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, অসমৰ স্বাস্থ্য সেৱাত ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মাইলৰ খুঁটা স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। আজিৰ পৰা কিছু বছৰ আগতে ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই অসমলৈ আহি 17খন কেন্সাৰ হস্পিটাল নিৰ্মাণৰ বাবে কল্পনাৰ কথা ৰাইজৰ আগত কৈছিল আৰু তাৰে 10খন কেন্সাৰ হস্পিটালৰ নিৰ্মাণৰ কাম তেখেতৰ হাতেৰে আৰম্ভ হৈছিল। মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহৰ 7খন আজি ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কৰকমলেৰে আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰিছোঁ। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটীৰ কেন্সাৰ হস্পিটাল, ডিফুৰ কেন্সাৰ হস্পিটাল আৰু শিলচৰৰ কেন্সাৰ হস্পিটাল যি এতিয়া অগ্ৰগতিৰ পৰ্যায়ত আছে তাকো আমি অহা 6 মাহৰ পৰা এবছৰৰ ভিতৰত আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম। মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 28 এপ্ৰিল তাৰিখে অসমত আৰু 7খন কেন্সাৰ হস্পিটালৰ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা ৰাখি থৈ গৈছে। এই গোটেইকেইখন কেন্সাৰ হস্পিটালত ৰাজ্য চৰকাৰে 3000 কোটি টকা আৰু টাটা ট্ৰাষ্টে 1100 কোটি টকা আগবঢ়াইছে আৰু আসাম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ নামেৰে আমি এই চিকিৎসালয় কেইখন নিৰ্মাণৰ কামত আমি আগবাঢ়িছোঁ। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी गुवाहाटी आकर गुवाहाटी में ही और एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। मैं आप लोग को बताते हुए मैं हर्ष अनुभव कर रहा हूं कि वो जो सेकेंड मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था सम्मानीय गृह मंत्री जी ने, उनका हमने नाम प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज दिया हो और यह प्रागज्योतिष मेडिकल कॉलेज का काम अभी अत्यंत दुर्बर गति से चल रहा है और आगामी 2 साल में वो मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण का काम हम लोग समाप्त करेगा एंड गुवाहाटी will have the extreme privilege of having 2 medical colleges in Guwahati city itself। साथ में आप लोग सब जानते हैं कि असम में आज 8 मेडिकल कॉलेज है और लगभग मैं 90% कंफर्म हूं कि ये साल हम लोग को धुबरी मेडिकल कॉलेज का भी स्वीकृति मिल जाएगा। साथ साथ में अगले साल हमको नौलबारी और कोकराझार मेडिकल कॉलेज का भी स्वीकृति मिल जाएगा। कुल मिला के हमारा ये समय में आज 8 पुराना जो अब तक सालू मेडिकल कॉलेज 8 को अगर हम छोड़ देता हूं, आज का दिन में हमारा सरकार ने 16 और नया मेडिकल कॉलेज का काम शुरू किया है। कोई 20% में है, कोई 99% में है, लेकिन अगले 5 साल में असम विल हैव द यूनिक प्रिविलेज ऑफ हैविंग 25 मेडिकल कॉलेज इन आवर स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा था कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज हो, 2028 साल का पहले असम का लगभग हर जिला में जो नया जिला हुआ है, एकदम जिला जो अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है, वो जिला को अगर छोड़ देता हूं तो असम का हर जिला में 25 जिला में एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी को सपना असम साकार करेगा, ये संकल्प लेके हम लोग आगे बढ़ा हूं। मैं आप लोग को बोलते हुए मेरा मन में हर्ष होता है कि अभी अभी हमारा और एक नया एग्रीमेंट जापान बैंक का साथ हुआ है, जाइका का साथ हुआ है। भारत सरकार के आग्रह के लिए जाइका ने असम का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को
डेवलप करने के लिए 4,000 करोड़ रुपया का एक लोन देने के लिए सम्मति दिया है। ये लोन का विनियोग करते हुए हम बरपेटा मेडिकल कॉलेज, तेजपुर मेडिकल कॉलेज, सिलचर मेडिकल कॉलेज, लखीमपुर मेडिकल कॉलेज, डिफू मेडिकल कॉलेज और जोरहाट मेडिकल कॉलेज में नया सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हम लोग बनाऊंगा। साथ साथ में ये जायका का जो लोन हम लोग को मिलेगा, यही लोन से सिलचर, हमारा होजाई, हमारा दौरंग, डिमा हसाओ, ऐसा कोई बहुत सारे जिले में 7 जिले में नया हॉस्पिटल का साथ साथ अपना जो पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट का चिकित्सा होता है वो भी स्टार्ट किया जाएगा। ये जो 4,000 करोड़ रुपया का हम लोग को लोन मिला है, ये लोन का 3,000 करोड़ रुपया भारत सरकार रिटर्न करेगा। खाली मात्र 1,000 करोड़ ही असम सरकार को रिटर्न करना पड़ेगा। बाकी 3,000 करोड़ रुपया रिटर्न करने का जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारा सरकार ने अपना हाथ में लिया है। तो असम का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे बहुत बड़ा बल मिला है भारत सरकार का सहायता का कारण। कोविड का समय में हमारा असम का हेल्थ सेक्टर ने जैसे काम किया था, आज पूरा देश का अंदर या देश में हमारा हेल्थ जो सर्विस है, हमारा जो हेल्थ केयर है, इसका एक बहुत बड़ा स्वीकृति मिला है। मैं आजिर सभात उपस्थित অসমৰ চিকিৎসা সেৱাৰ লগত জড়িত সকলোকে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাব খুজিছো। কোভিডৰ সময়ত আমি যি অপূৰ্ব মানৱীয় সেৱাৰ দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিব পাৰিছিলো, সেয়া আমাৰ অসমৰ স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ বাবে এক সদায় অতুলনীয় আৰু গৌৰৱময় বুৰঞ্জী ৰূপে চিহ্নিত হৈ থাকিব। प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान भारत योजना या वेलनेस सेंटर, ये सारे चीजों में हम बहुत आगे जा चुका हूं और आज हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग अपने आप को ही बहुत ही गौरवी महसूस करता हूं। भारतवर्ष का गृह मंत्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन में 2016 सन में हम लोग ने अटल अमृत अभियान को शुरू किया था। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत अगर बीपीएल लोगों का हेल्थ केयर के लिए 5 लाख रुपया देता है, अटल अमृत अभियान लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास लोगों को क्रिटिकल केयर का समय में, क्रिटिकल डिजीज का समय में व्यक्तिगत 2-2 लाख रुपया का कवरेज देता है। वो मिला के असम में आज 92% लोगों का हाथ में कोई ना कोई एक हेल्थ कवरेज प्रस्तुत है, एक हेल्थ कवरेज सब लोग का साथ में है। हम असम को हेल्थ का दिशा में एक मॉडल स्टेट बनाना चाहता हूं और मेरा उम्मीद है हम लोग वो काम कर पाएगा। यही बात बोलते हुए मैं दोबारा ये जो अपना एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया, इसलिए मैं मेरा लोक निर्माण विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं, हेल्थ डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं और फिर एक बार आप लोग सबको प्रणाम करते हुए मैं मेरा वाणी का विराम देता हूं। আপোনালোকৰ আকৌ এবাৰ মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াক আকৌ এবাৰ হৃদয়ৰ পৰা শলাগ লৈ মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ ভাষণৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাইছো। আমি আশা ৰাখিছোঁ অফুৰন্ত কৰ্মস্পৃহাৰে ৰাজ্যখনৰ উত্তৰোত্তৰ প্ৰগতিক এক নতুন গতি দিবলৈ তেখেতে লোৱা পদক্ষেপসমূহ সফল কৰাত আমি সকলোৱে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পাৰিম। माननीय भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के गरिमामय उपस्थिति से हम सभी आनंदित हैं। अब मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वे इस सभा को संबोधित करें।
आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित असम सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री श्री केशव महंता जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और असम के प्रभारी भाई जय पांडा जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री भावेश कलिता जी, सांसद गुवाहाटी श्रीमती क्वीन ओझा जी, आसाम सरकार के उपस्थित सभी मंत्रीगण, सीएन केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर बी.के. वैश्य, प्रिंसिपल प्रोफेसर अच्युत वैश्य जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी भाइयों बहनों, आज असम सरकार की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर एक बहुत बड़ा नजराना असम के मुख्यमंत्री के इनिशिएटिव से गुवाहाटी और समग्र असम की जनता को दिया जा रहा है। मैं असम की पूरी जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। असम को ये 6 साल के अंदर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से हेल्थ केयर की दृष्टि से न केवल नॉर्थ ईस्ट, आसपास के सभी देशों को और सभी देशों के बीमार नागरिकों के लिए असम हेल्थ केयर का प्रमुख सेंटर बने, उस दृष्टि से मोदी जी और हेमंत विश्व शर्मा जी विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं और इस दिशा में अनेक कदम आज तक उठाए हैं और इसके नतीजे भी आज हमने देखे। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल यहां पर जो बनाया है, इसमें ढेर सारी सुविधाएं हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों ने बताया है, मैं इसकी बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता। लगभग 273 करोड़ 273 करोड़ रुपए की लागत से इसके अंदर ढेर सारी सुविधाएं, लगभग 40 डॉक्टर, 100 नर्सिस, कई वार्ड बॉय और 24/7 हाउसकीपिंग, अनेक सारी सुविधाएं यहां पर प्राप्त की गई है, आसाम की जनता के लिए उपलब्ध कराई गई है। परंतु मित्रों, आसाम के हेल्थ केयर के नजरिए को और स्थिति को एक विजन के साथ बदलने का काम पहले स्वास्थ्य मंत्री के नाते और अब मुख्यमंत्री नाते असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्व शर्मा ने किया है। मैं हेमंत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आयुष्मान भारत योजना ने पूरे देश को बदलने का काम किया है और पूरे देश के अंदर अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित गरीब लोगों को नवजीवन प्रदान करने का काम किया है। असम के अंदर 8 लाख मरीजों को स्कैन की सुविधाएं, 20 लाख मरीजों को एक्सरे की सुविधाएं, 47 लाख मरीजों को लैब की सेवाएं मुफ्त डायग्नोस्टिक पहल के द्वारा दी गई। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस प्रोग्राम के तहत 33 डायलिसिस केंद्र काम कर रहे हैं। लगभग 108 एम्बुलेंसों के द्वारा 48 लाख मरीजों को
रेफरल सेवाएं मुफ्त में प्रोवाइड की गई। राज्य सरकार ने भी वित्तीय सहायता और इलाज का जो योजनाएं बनाई हैं, इसमें जन्मजात हृदय रोग लेकर जन्मे बच्चे जिनको बचाना बहुत कठिन होता है, मुझे आनंद है कि लगभग 8800 बच्चे का मुफ्त में ऑपरेशन कर उनको आज स्वस्थ बनाने का काम किया है। मिशन स्माइल के तहत देश भर में मैं जाता हूं, बहुत कम लोगों ने इस प्रकार के इनिशिएटिव लिए हैं। मिशन स्माइल के तहत 20,000 से ज्यादा बच्चों का कटे होठों का इलाज करने का काम आसाम सरकार की सहायता से हुआ है और वो बच्चे आज समाज में सम्मान के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। स्नेह स्पर्श योजना के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित लगभग 900 बच्चों को अनेक प्रकार की असाध्य बीमारियों को आज उससे मुक्त कराकर अपने परिवार के साथ भेजने का काम किया गया और 27 लाख परिवारों को, आप कल्पना करिए 27 लाख फैमिली पीएम जय के तहत आज इनको 5 लाख तक की सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट आसाम सरकार और भारत सरकार दे रही है। और इसके तहत आसाम के 331 अस्पतालों को जोड़ने का काम किया है और आपके द्वार आयुष्मान अभियान के द्वारा एक प्रकार से सभी को इसका फायदा मिले, ये सुनिश्चित किया है। मित्रों, मैं भारत के गृह मंत्री के नाते जब कोविड था तब देश भर की कोविड के लिए जिस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी थी, जब तक वैक्सीन नहीं बनी थी तब तक इलाज की व्यवस्था है, कोविड ज्यादा न फैले इसकी व्यवस्था है, टेस्टिंग की रातों रात व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना और वैक्सीन आने के बाद 100% वैक्सीनेशन करना। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब आसाम जैसे राज्य ने इसको जिस खूबी के साथ किया है, आसाम की पूरी टीम हेमंत जी के नेतृत्व में बहुत बहुत बधाई के पात्र है। मोदी जी ने देश के 130 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगाने का जब अभियान चलाया, तब दुनिया के बहुत सारे देश से सोच रहे थे कि वैक्सीन तो बन गया, फ्री ऑफ कॉस्ट दे भी दोगे, मगर भारत जैसे राज्य में देने की व्यवस्था कैसे होगी। मगर टेक्नोलॉजी के सहारे कोविन ऐप की सहायता से जब 130 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन का अभियान चालू हो गया, पूरी दुनिया अचंभित हो गई। आज हमारे कोविन ऐप को 100 से ज्यादा देशों ने मांगा है, स्वीकारा है और ये भी कहा है कि भारत जितना सटीक वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम लोग नहीं कर पाए। मित्रों, यहां पर मेडिकल कॉलेजों की संख्या हो या सुविधाएं हो, वो बहुत अच्छे तरीके से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आसाम ने किया है। कैंसर के लिए पूरे आसाम के जोन बनाकर 10 अस्पतालों को बनाकर कैंसर के लिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में से किसी को दिल्ली या कलकत्ता जाना न पड़े, इस प्रकार की एक उत्कृष्ट व्यवस्था आसाम के अंदर की जा रही है, वो दिखाई पड़ता है। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने 28 अप्रैल को 7 कैंसर केयर अस्पतालों को राष्ट्र को समर्पित करने का काम किया। 4 का भूमि पूजन किया, 3 तैयार हो गए थे, उसको उद्घाटन करने का काम किया है। और लगभग इस परियोजना में जो लागत आई है, वो लागत में भारत सरकार, प्राइवेट कंपनियां और आसाम सरकार तीनों ने मिलकर काम किया है। मित्रों, आज यहां पर बहुत सारे मेडिकल के, पोस्ट ग्रेजुएशन के और ग्रेजुएशन के विद्यार्थी बैठे हैं, नर्सिंग कॉलेज के भी विद्यार्थी बैठे हैं। मैं इन सबको कहना चाहता हूं कि एक 8 साल के अंदर मोदी जी ने
130 करोड़ के देश के स्वास्थ्य के लिए चरणबद्ध तरीके से एक अभियान चलाया है। सबसे पहला स्वच्छ भारत अभियान चलाया, जिसके तहत पूरे देश में लगभग आज एक भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में टॉयलेट न हो, और स्वच्छता के कारण बीमारी को फैलने से रोकने का काम किया है। गांव और शहरों को स्वच्छ कर बीमारी को रोकने का काम किया। इसके बाद फिट इंडिया मिशन के द्वारा देश के युवाओं को फिट होने के लिए प्रेरित कर एक स्वस्थ जीवन की आदत डालने का काम किया। योग का महत्व बनाकर अनेक रोग आने से पहले योग के माध्यम से रोक पाए, इस प्रकार की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की। पोषण अभियान के तहत कोई भी बच्चा पोषण विहीन न हो, और पोषण विहीन बच्चों को आइडेंटिफाई कर एनजीओ, कुछ कॉरपोरेट घराने, कुछ कोऑपरेटिव संस्थाएं, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इनको एडॉप्ट करें और उनके पोषण की चिंता हो, जिससे इनकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो और उनके अंदर बचपन से कोई रोग शरीर को रोग का घर न बना पाए, इसके लिए किया। मिशन इंद्रधनुष से लेकर 12 साल तक के सभी बच्चों का कंप्लीट वैक्सीनेशन प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार ने करा, जिससे ढेर सारे रोगों से बच्चों को बचाया जा सके, नागरिक स्वस्थ हो। उसके बाद में जल जीवन मिशन को हाथ में लिया है। हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा पानी और अच्छे पानी की उपलब्धि बहुत जरूरी है। ये जल जीवन मिशन के माध्यम से भारत के हर घर में जल पहुंचाने का और नल से जल पहुंचाने का काम हाथ में लिया है, जिससे विशेषकर बच्चे और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ढेर सारी बात है। मित्रों, अब मैं आगे कहना जाना हूं कि आप लोगों के लिए जो यहां मेडिकल के स्टूडेंट्स और नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, इन लोगों के लिए ढेर सारी संभावनाएं खड़ी हुई। मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के 60 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं आज फ्री करी हैं। मैं अनेक राज्यों में देख रहा हूं, तहसील सेंटर पर, ब्लॉक सेंटर पर अनेक आधुनिक अस्पताल बन रहे हैं, क्योंकि अब वो वायबल है। इसलिए वायबल है कि हर तहसील के अंदर जो गरीब व्यक्ति है, उसके लिए, उसके पास अपने परिवार के लिए खर्च करने के लिए 5 लाख रुपया है। तो जो पहले हमारी स्वास्थ्य सेवाएं डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर, अर्बन सेंटर पर सेंट्रिक थी, वो धीरे धीरे परकोलेट होकर तहसील सेंटर और गांव तक पहुंची है, और एक वेलनेस सेंटर का जाला बनाकर पीएचसी, सीएचसी को भी संपूर्ण रूप से सभी प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए उपयुक्त और सक्षम बनाने के लिए एक अभियान हाथ में लिया है। ये वेलनेस सेंटर, आयुष, स्वच्छ भारत अभियान, फिट इंडिया अभियान, पोषण मिशन, मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन, ये सारा एक वेल थॉट स्वास्थ्य को, भारत के 130 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को मजबूत और उसको कोई प्रकार की बीमारी न हो, इस प्रकार का बनाने का एक वेल थॉट प्रोग्राम है। और इसके तहत आज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावे के लिए भी ढेर सारा काम किया है। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 64,000 करोड़ रुपया, मित्रों कोई कल्पना नहीं कर सकता, 64,000 करोड़ रुपया एक ही बजट के अंदर खर्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, पिछले वर्ष हमारा स्वास्थ्य विभाग का बजट 94,000 करोड़ था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 94,000 करोड़ रुपया, और 21-22 में 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,24,000 करोड़ रुपया रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये पूरा खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के
पीछे होना है। लगभग 600 से अधिक जिलों में क्रिटिकल केयर से जुड़े हुए 35,000 बेड तैयार किए जाएंगे। 730 जिलों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब तैयार किए जाएंगे। महामारी से जुड़े रिसर्च लैब तैयार किए जाएंगे और आयुष्मान भारत मिशन को भी गति दी जाएगी। और इसके लिए ये सब तैयारी के बाद अगर डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है तो क्या होगा? इसको भी मोदी जी ने बहुत द्रुत गति से, स्पीड से हाथ में लिया है। मैं एक आंकड़ा इसलिए कहना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण है। 2013-14 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या प्राइवेट और सरकारी देश के अंदर 387 थी। 2021-22 में 13-14 से 21-22 तक के 7 साल के अंदर 387 से बढ़कर 596 अप्रोक्सीमेटली 600 हुई। एमबीबीएस की सीटों की संख्या 2013-14 में 51,000 थी। 51,000 से बढ़कर 89,000 एमबीबीएस डॉक्टर अब हर साल बाहर निकलेंगे। और पीजी की संख्या जो 31,100 थी वो 31,100 को 2 गुना कर 60,200 करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि ढेर सारा हेल्थ के विषय में काम कर मोदी जी ने हेल्थ की दृष्टि से 130 करोड़ की आबादी को सुरक्षा के सुदर्शन चक्र से सुरक्षित करने का काम किया है। और ये अभियान आसाम सरकार ने भी आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 22 नए एम्स बनाए जा रहे हैं। 75 सरकारी मेडिकल कॉलेज नए बनाए जा रहे हैं। 57 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटों की बढ़ोतरी, इसका मतलब बेड्स की बढ़ोतरी की है। और 10 नए एम्स 22 में से इनकी ओपीडी और एमबीबीएस का पहला सेमेस्टर चालू कर दिया गया है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं मित्रों कि ये कई सारे इसके साथ सुधार किए हैं। मेडिकल कॉलेज की रिक्वायरमेंट हो या एमबीबीएस और पीजी का रेशियो हो, ये सारे सुधारों के कारण आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला एक राष्ट्र बना है। और कुछ ही सालों के अंदर हम दुनिया भर में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ लैस देश बनेंगे, सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस बनेंगे। मुझे विश्वास है इसी तर्ज पर हेमंत जी ने ढेर सारी बातें बताई है। आसाम भी आगे बढ़ रहा है। न केवल नॉर्थ ईस्ट, आसाम पूर्व के सभी देशों के लिए भी एक हेल्थ का सेंटर बनने जा रहा है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, 6 साल के अंदर जो आसाम कभी आतंकवाद, बंद, हड़ताल इसके लिए जाता था, वो आसाम आज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। और द्रुत गति से यहां न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ। हमने इस चुनाव के अंदर वादा किया था कि हम आसाम को आतंकवाद मुक्त बनाए हैं, हम आसाम को हड़ताल मुक्त बना दिए हैं, आसाम के अंदर अब गोलियां नहीं चलती है, अब हम आसाम को बाढ़ मुक्त भी बनाएंगे और रोजगार युक्त भी बनाएंगे। अगली हमारी ये 5 साल की सरकार, जिसका 1 साल कल पूरा हो रहा है, हेमंत जी ने प्रायोरिटी तय की है। हर साल बाढ़ सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया का जो नुकसान करती है, वो बाढ़ का एक अच्छा प्रबंधन कर आसाम को बाढ़ मुक्त बनाना और आसाम के अंदर रोजगारी के लिए नई व्यवस्थाएं करना, ये सारी चीजों को हम इसलिए कर पा रहे हैं कि आसाम की सरकार ने चारों चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव में आसाम की जनता ने मन खोलकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर कमल के निशान को आपने ताकत बढ़ाई है, आपका आशीर्वाद दिया है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी पूरे नॉर्थ ईस्ट को
और विशेष कर असम राज्य को संपूर्ण विकसित राज्य देखना चाहते हैं। पिछड़े हुए असम को आगे बढ़ाना और देश के सबसे विकसित राज्यों के नक्शे पर रखना, ये हमारा लक्ष्य है। आज एक बहुत बड़ा काम हेमंत जी के नेतृत्व में सालों से जो लंबित था, आज समाप्त हुआ है। मैं हेमंत जी, इनके स्वास्थ्य मंत्री महंत जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आसाम की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम। Your presence itself is a great encouragement, sir. Thank you so much for your speech. Now we have come to the almost end of this program, and all are requested to kindly stand up and join us for the national anthem.